इंडिया में तो खूब फैली हुई है ये प्रॉब्लम, मतलब वी आर 1/3 ऑफ द वर्ल्ड्स एडिक्शंस, 1/3 ऑफ द वर्ल्ड्स डिप्रेशन, 1/3 ऑफ द वर्ल्ड्स सुसाइड केसेस. तो यहाँ तो हर घर में देयर इज़ अ प्रॉब्लम, एंड येट यू नो ट्रीटमेंट गैप इज़ 95%. और हम अगर 90s के किसी भी किड्स की बात करें, मिलेनियल्स कोई भी ले लें, कोई ये भी नहीं बता सकता था कि वो डिप्रेशन में है. एंग्जाइटी किसी को पता भी नहीं था कि होती क्या है. हाउ डू यू डील विद सच सिचुएशंस? वो ट्रॉमा जो बहुत देर पहले मिल चुका था बट अभी उसका क्लोजर मिलना मुश्किल है. एक्चुअली ट्रॉमा का मतलब ही ये है कि इट इज़ नॉट जस्ट व्हाट हैपेंड टू यू, इट इज़ कि व्हेन दैट हैपेंड हाउ डिड यू डील विद इट. बिकॉज टुडे वी आर गेटिंग स्ट्रेंथ फ्रॉम कम्युनिटीज़, social media communities, lots of youth organizations like Yuva and Youth Ki Awaaz and Youth for Mental Health. So these organizations are providing platforms where young people can express, and when they are expressing, even the elders are getting courage to own their stories. आजकल आप मानो तो college suicides वगैरह के challenge is getting younger and younger. It's going into schools. But true. at the same time, school children and college children are encouraging their parents to go for counseling. 300 million people with diagnosed mental health conditions. Every fourth Indian has a mental health problem. Suicide is the #1 cause of death for the age of 15 to 25. Globally, there's a suicide every 40 seconds. In India, it's every 17 seconds. 22 million people with psychotic disorders हैं इंडिया में. 70 million people with depressive disorders हैं. हर चौथे पांचवे लोग के पास कुछ ना कुछ परेशानी है. 50 million children with mental health disorders diagnosed. तो अब आप सोचो कि इस देश में कौन से घर में ये प्रॉब्लम नहीं है. और अगर हम कुछ लोग हैं जो बात करना शुरू करें, वी आर ऑल लिविंग लाइफ फॉर द फर्स्ट टाइम. ये तो सबके लिए, ये हमारा सबका पहला ही एक्सपीरियंस है. लेट्स मेक इट वर्थवाइल. थैंक यू. थैंक यू. Khawateen's Raat, आप हैं आपके love coach Raul Markin के साथ, and as they always say कि you should never judge a book by its cover, but when the cover is so beautiful and so symbolic, I think हमें ये देखना चाहिए और उसके बाद definitely हमें judge करना चाहिए. That's an amazing book, beautiful book called Homecoming, and ये cover भी बहुत खूबसूरत है, बहुत symbolical है. जैसे वो सभी rivers हैं coming back to its source, looks so beautiful. So symbolic. और आज हमारे साथ I'm so fortunate to have one of the co-authors, नेहा किरपाल आज हमारे साथ है. इन्होंने साथ में मिलकर लिखी एक किताब नंदिनी मुरली के साथ. It's a beautiful book, Homecoming, Mental Health Journeys of Resilience, Healing and Wholeness. So इसमें 11 स्टोरीज हैं, राइट? जी. उनमें से 2 स्टोरीज आपकी और नंदिनी की अपनी है. सबसे पहले तो मैं ये जानना चाहूँगा कि ये आइडिया कहाँ से क्रिएट हुआ कि आप दोनों को मिलके एक किताब लिखनी है? कितना खूबसूरत सवाल है. मिलने की बात करी आपने, एंड दिस कवर इज आल्सो सिंबॉलिक ऑफ दैट. सो मेनी डिफरेंट स्ट्रीम्स कमिंग टुगेदर, and we are also a collective. So this is 11 women and stories, but Nandini's story and mine started quite ironically. All of us have been through a lot of mental health challenges in the course of our lives. कई चीज़ें देखी हमने बचपन से, एंड बड़े होते होते फैमिलीज़ में पेरेंट्स को मेंटल इलनेस, या somebody has lost, Nandini lost her spouse to suicide, I lost my younger brother, and उस टाइम पे मुझे उनकी बुक मिली called Left Behind. Left Behind. हाँ जी. Okay. और नंदिनी की ये बुक जो थी Left Behind, it gave me a lot of courage and hope when I was grieving and healing from my brother's loss. एंड उस टाइम पे आई गॉट कनेक्टेड विद हर, एंड देन हमने सोचा क्यों ना हम एक मूवमेंट बनाएं, एंड लेट्स फाइंड अदर women friends who have all gone through severe mental health challenges, different professions, different walks of life, all over India. Youngest is 22 years old, oldest is 72 years old in the book. एंड ये जो 9 women हैं, जो 9 स्टोरीज हैं, जो 9 लेडीज हैं, इन्हें आपने कैसे ढूंढा? You know, when you go forward with a mission and a good cause, कभी कभी स्टोरीज आपको ढूंढ लेती हैं, कभी कभी आपके दोस्तों में आपको स्टोरीज मिल जाती हैं, and this is how it was. So many of them are actually, they are all my friends in one way or another. Somebody called Zainab Patel, who is a big advocate in the trans community, is an Aspen fellow with me. तो जैनब ने अपनी स्टोरी खूब शेयर करी है यहाँ पे, to grow up as a young person and in the trans community, and क्या उनकी ज़िंदगी रही. Somebody like Janani Iyer, who is a school teacher and has been teaching with Shri Ram School, and एकदम model teacher हैं क्योंकि all the students love her because she creates safe spaces for them.
or somebody like Aparna Piramal Raje, who's a dear friend of mine, who has written a book which is a bestseller now, called Chemical Khichdi, which is talking about her journey with bipolar. अब वो entrepreneur भी हैं, वो mother भी हैं, लेकिन उनकी खुद की bipolar journey के बारे में first person लिखा है उन्होंने. या डॉक्टर कविता अरोरा, जिनकी खुद की मदर स्किज़ोफ्रेनिया था उनको, जैसे कि मेरी मदर को, बट डॉक्टर कविता अरोरा आजकल इंडिया में टॉप चाइल्ड साइकेट्रिस्ट में से मानी जाती हैं. शी इज़ द को फाउंडर ऑफ चिल्ड्रन फर्स्ट. बच्चों के साथ काम करती हैं, यंग एडल्ट्स के साथ काम करती हैं. और कविता's वर्क इज़ एज अ क्लिनिशियन बट ऑल्सो एज अ लिव्ड एक्सपीरियंस एक्सपर्ट जैसे बोलते हैं. तो शी हैज़ बीन एबल टू ब्रिंग ऑल ऑफ दीज लर्निंग्स टू द फोर. तो इस तरह से दोस्तों से बात हुई एंड स्टोरीज इमर्ज्ड एंड वी सेड क्यों ना साथ में मिलके करें. तो वी आर ऑल गेटिंग करेज फ्रॉम ईच अदर. एक दूसरे के साथ काम करने से हिम्मत बनती है, क्योंकि दीज स्टोरीज आर वेरी डिफ़िकल्ट. एकदम अपने आप से ये बातें करना इतना मुश्किल होता है, अपनी फैमिली से ये बातें करना कितना मुश्किल होता है. मेरे बचपन पे क्या बीती, मेरे पेरेंट्स का क्या एक्सपीरियंस रहा. मेरी मदर को स्किज़ोफ्रेनिया था जब मैं 5 साल की थी, और 5 साल से 10 साल की उम्र में क्या क्या परेशानियाँ हुई. और फिर वो 10 साल करीब चले गए, वो गायब हो गए, मेरे माँ और मेरे यंगर ब्रदर. तो क्या क्या मुश्किलें उनको झेलनी पड़ी उस टाइम पे. और स्किज़ोफ्रेनिया इस तरह से था 1980s 90s में कि ये वर्ड ही नहीं पता था किसी को. अब तो खैर लोगों को पता है स्किज़ोफ्रेनिया है, बाइपोलर है, डिप्रेशन, एंग्जाइटी कई लोगों को है. इंडिया में तो खूब फैली हुई है ये प्रॉब्लम. मतलब वी आर 1/3 ऑफ द वर्ल्ड्स एडिक्शंस, 1/3 ऑफ द वर्ल्ड्स डिप्रेशन, 1/3 ऑफ द वर्ल्ड सुसाइड केसेस. तो यहाँ तो हर घर में देयर इज़ अ प्रॉब्लम. एंड येट ट्रीटमेंट गैप इज़ 95%. ज़्यादा से ज़्यादा लोग अपनी पूरी ज़िंदगी में कभी आपस में बात भी नहीं करते इसके बारे में, अपने आप को एडमिट नहीं करते. तो वी थॉट कि दीज 11 स्टोरीज विल हेल्प इनेबल मोर स्टोरीज टू कम आउट. लोग अपने घरों में बात करेंगे, डाइनिंग टेबल पे बात करेंगे, क्लासरूम में बात करेंगे, बोर्ड रूम में बात करेंगे. तो वर्क प्लेसेस को सेफ़र बनाएंगे. दे विल बी मोर सपोर्टिव, मोर इंक्लूसिव. और स्कूल्स और कॉलेजेस में किस तरह से हम हेल्प करें, टीचर्स हेल्प करें स्टूडेंट्स की, मैनेजमेंट हेल्प करे टीचर्स की कि उनको बर्नआउट ना हो जाए. तो इस तरह से इट इज़ सॉर्ट ऑफ अ मूवमेंट. डिफरेंट काइंड्स ऑफ स्टोरीज इन द बुक. यंगेस्ट contributor is in her early 20s, called Kairavi Bharatram. Kairavi had written a children's book when she had just finished school about her journey with depression. And people used to think कि आप इतने privileged family से हो तो आपको क्या problem है, depression कैसे हो सकता है. So she shared about her depression, her ADHD and her bipolar and various diagnoses that she got, but how she has journeyed through it. आज वो entrepreneur हैं, she runs a brand called Tipsy Beauty, and so she is the youngest contributor in the book. And then Dr. Firoza Godrej, जो कि Godrej family से हैं, she is in her 70s now. But so bravely she talked about her daughter's obsessive compulsive disorder challenges, her dyslexia challenges, and how from the last 40-50 years she has been handling this in a traditional Parsi joint family. Being such a renowned business family, उनकी journey क्या रही. तो एकदम अलग अलग जैसे ऐसे contrasting stories हैं. एक हमारे contributor पूर्णिमा विश्वनाथन, she is a psychologist herself. She teaches, she practices, but she herself lives with bipolar disorder. She talked about all the things that you can imagine, the worst possible challenges that a woman can go through, including sort of having severe mental illness, but also suffering rape, suffering so many other challenges. But her journey, her family who supported her, the caregivers who provided her the help that she needed. So what was her journey like? Now all these stories, when you hear together, on the one hand you feel a lot of courage and a lot of hope, that if they can go through these journeys, so can I, and my family can also support. I can also come out and identify my mental health problems without being labeled. तो एक वो है कि shame, stigma, जो भी हमें ऐसे लगता है कि हमें शर्म के मारे चुप रहना चाहिए, we have to shed all of that. This book is about celebrating freedom. It's about feeling liberated from your own misfortunes, from your own labels, and owning it. And homecoming. Homecoming. Path to wholeness. Of course, coming home. In sub stories में से, when you were compiling them, कौन सी एक ऐसी story थी which actually shook you or which actually teared you up? मतलब आप सच में आपको goosebumps आ गए थे और you felt like oh shit ऐसा भी हो सकता है.
Actually, as I look at all of these stories, all of our life journeys have been incredibly challenging. इनमें कुछ चीज़ें common रही हैं. All of us have gone through severe mental health challenges for over 20 years. And that has been a long-term impact. Then we are also people who have not gone through the challenge alone. We have had at least one other person in the family who has also struggled. So whether it is somebody like me where my mother had schizophrenia, my younger brother also had psychosis, he had then depression and then suicidality. मेरे खुद की लाइफ में ये सब challenges की वजह से यंग उम्र से मुझे complex PTSD की diagnosis हो गई और फिर autoimmune and chronic pain is so linked with trauma. तो Sjogren's was an autoimmune condition that I got. But ये सबको साथ में लेके कैसे अपने सारे labels और diagnosis को लेके अपनी life you are making. As an entrepreneur, I am now the co-founder of Amaha. Amaha is now the largest mental health provider in the country. We reach 600 cities. We have a clinical team of 220 psychiatrists and psychologists in-house. And we have 8 centers across India. We've just opened our first hospital. तो आर होप इज़ कि हम मतलब इस टाइम पे 40,000 लोग हमारे क्लाइंट्स हैं एक टाइम पे. आवर होप इज़ टू रीच मोर एंड मोर पीपल. सो इस तरह से ईच ऑफ दीज स्टोरीज, whether I take Janani's story or I take Kairavi's story or Kavita's story, to be somebody who has been a young caregiver. Kavita's story is also similar to mine, but different in the sense that I am a lived experience person now in mental health. She is a clinical expert. तो एक तरह से एक complementarity हो गई. And in her journey, she had a brother as well, and lots of similarities also. भाई था, mother had schizophrenia. पता नहीं था in the 80s and 90s कि ये चीज़ क्या होती है. तो अभी recently when she said that she studied psychiatry की book में पहली बार definition देखी उन्होंने और diagnosis के symptoms देखे schizophrenia के क्या हैं और बोली ये तो मेरे mother को है. अब मुझे समझ में आया कि मेरे मदर को क्या प्रॉब्लम है और फिर उनकी मदर की ट्रीटमेंट उन्होंने स्टार्ट करी. आपने बिल्कुल सही कहा. मैं अपने बचपन की बात करूं या किसी के भी, मतलब जैसे आप कह रहे हैं कि हम बहुत आराम से ना बहुत खुल के मेंटल हेल्थ के बारे में बात करते हैं. बट व्हेन वी वर ग्रोइंग अप, और हम अगर 90s के किसी भी किड्स की बात करें, मिलेनियल्स कोई भी ले लें, उस वक्त शायद इट वाज सच अ स्टिग्मा. कोई ये भी नहीं बता सकता था कि वो डिप्रेशन में है. एंग्जाइटी किसी को पता भी नहीं था कि होती क्या है. अब ग्रोइंग अप, चाहे वो बचपन का कोई ट्रॉमा हो, चाहे आपके पेरेंट्स ने दिया हो, चाहे आपके किसी अंकल या आंटी ने दिया हो सकता है वो अब एग्जिस्ट भी नहीं करते, वो हमसे बहुत दूर हैं. अब वो क्लोजर लेना बहुत मुश्किल है, एंड वी आर स्टिल लिविंग विद इट. हाउ डू यू डील विद सच सिचुएशंस? वो ट्रॉमा जो बहुत देर पहले मिल चुका था बट अभी उसका क्लोजर मिलना मुश्किल है. एक्चुअली ट्रॉमा का मतलब ही ये है कि इट इज़ नॉट जस्ट व्हाट हैपेंड टू यू, इट इज़ कि व्हेन दैट हैपेंड हाउ डिड यू डील विद इट. Did you have an older person or a teacher or a family member who you could talk to about it? Are you able to then maybe go into therapy and discuss about it? Are you able to journal and support yourself to actually process it? तो हमें क्या करना है, bottled up नहीं रखना है. These are things that stay in our cells, in our body, in our mind, in our memories. And वही जो adverse childhood traumas आपने बताया, चाहे relocation हो, divorce हो, पेरेंट विद अ मेंटल इलनेस हो, ऐसे करके 7-8 एडवर्स चाइल्डहुड ट्रॉमाज हैं. दीज कीप प्लेइंग आउट इन आवर लाइफ एंड दे कीप इम्पैक्टिंग अस. तो अगर मैं आज 45 साल की हूँ, आई एम कैरिंग एवरी वर्जन ऑफ माई सेल्फ. मेरी ज़िंदगी में जो भी हुआ है, तो जितना रिजॉल्व करते जाएंगे, जितना रिलीज़ करते जाएंगे, दैट इज़ द वे फॉरवर्ड. एंड दैट इज़ वॉट द फ्रीडम टू एक्सप्रेस योर स्टोरी इज़. क्योंकि इफ़ यू कैन डू द सेल्फ लव एंड सेल्फ एक्सेप्टेंस ऑफ सेइंग चलो जो भी हुआ, लेकिन कैन आई एडमिट इट ऑल विदाउट गिल्ट, विदाउट शेम, विदाउट द फियर ऑफ शेम. ये सबसे खतरनाक है, बिकॉज फियर ऑफ शेम तो वो है जो अभी तक हुआ भी नहीं है, बट हमें डर है कि हमारी फैमिली के नाम पे क्या आएगा, हमारी इज्जत का क्या होगा, हमारे फ्रेंड्स कैसे जज करेंगे. तो आजकल क्या हो गया कि यंगर जनरेशन ने ओल्डर जनरेशन को फ्री कर दिया है, बिकॉज द यंगर जनरेशन इज ओनिंग देयर आइडेंटिटी इन ऑल एस्पेक्ट्स. They are able to say, I am straight, I am gay, I am trans, I want to explore my gender, or they are saying, I have bipolar disorder, or I am feeling
depressed or whatever the thing is. But to be able to own your identity and give it an expression and a voice. आजकल words भी हैं, platforms भी हैं, social media पे लोग आके बोलते हैं, and strangers are validating each other. अपनी family की starting point and only point की बात ही नहीं है. Because today we are getting strength from communities. Social media communities, lots of youth organizations like Yuva and Youth Ki Awaaz and Youth for Mental Health, इतने सारे हैं who we work with. So these organizations are providing platforms where young people can express, and when they are expressing, even the elders are getting courage to own their stories. तो आजकल younger generation is making all of these things normal. आजकल आप मानो तो college suicides वगैरह के challenges getting younger and younger. It's going into schools. But at the same time, school children and college children are encouraging their parents to go for counseling. So ऐसे दोनों तरफ से generational support अगर चलेगी, openness of dialogue, आजकल problem सिर्फ ये है connection और loneliness की. तो अगर आप मतलब if we recognize that loneliness is a real killer, अगर हम हमारी जो whatever traumas we are going through हम share नहीं कर पाए या कुछ बीती है उसको process नहीं कर पाए, बॉटल्ड अप नहीं रखना है कि अपने बेसमेंट में डीप फ्रीजर में रखा हुआ है, वो कहीं जाने नहीं वाला. इट इज़ गोइंग टू स्टे इन यू एंड इट इज़ गोइंग टू रॉट इनसाइड यू एंड इट इज़ गोइंग टू इम्पैक्ट एवरी एस्पेक्ट ऑफ योर लाइफ. तो आगे की लाइफ अगर डी-रिस्क करनी है, मतलब मैं व्हेन आई वाज इन माय 20s आई यूज्ड टू फील सो इनसिक्योर, so ashamed, so embarrassed about who I was, about my life, about every aspect of what I had around me. और मुझे लगता था मतलब I want to be a fly on the wall, कोई मुझे ना देखे और कोई मेरी फैमिली को ना जाने, कोई हमें ना समझे, क्योंकि किसी की समझ के बाहर हैं हम. इतनी प्रॉब्लम्स हैं हमारे घर बार में. टुडे आई फील द सेम सेंस ऑफ फ्रीडम, द सेम सेंस ऑफ कॉन्फिडेंस, द सेम सेंस ऑफ सेल्फ बिलीफ that I was born and intended to feel. Because every child when you're born, you feel that the world belongs to you and you belong to the world. बच्चों को थोड़ी होती है कोई शर्म, कोई इनसिक्योरिटी, जब मन किया रो लिए, जब मन किया हंस लिए. सो टुडे व्हेन यू गो थ्रू दीज जर्नीज, तो ऐसे लगता है एक मन हल्का हो गया. यू आर एबल टू शेयर योर चैलेंजेस, यू आर एबल टू शेयर ऑल्सो द होप एंड द एक्सपीरियंस कि इतना सब कुछ हुआ, बट देखो किस तरह से, मतलब मैंने 10 साल इंडिया आर्ट फेयर चलाने में लगा दिए. एंड आई फाउंडेड दैट इन 2008 एंड देन वेंट ऑन टू सेलिंग दैट बिजनेस इन 2018. और तब से मेंटल हेल्थ में काम कर रही हूँ. एक नेशनल अलायंस बनाया है हमने कॉल्ड द इंडिया मेंटल हेल्थ अलायंस. ये 230 मेंबर ऑर्गेनाइजेशंस वी हैव फ्रॉम ऑल ओवर इंडिया. वी आर ट्रेनिंग साइकोलॉजिस्ट, वी हैव ट्रेन 2000 साइकोलॉजिस्ट लास्ट ईयर. वी आर ट्रेनिंग साइकियाट्रिस्ट नाउ. सो आप ऐसे सोचो कि हम जैसे लोग जिनके पास कोई क्लिनिकल ट्रेनिंग नहीं है, जिन्होंने कुछ लाइफ में मेडिकली नहीं पढ़ा है, लेकिन अपनी लाइफ एक्सपीरियंसेस से व्हाट वी आर लर्निंग, दैट वी आर एबल टू गाइड आवरसेल्व्स एंड वी आर आल्सो एबल टू गाइड मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल्स. थेरेपिस्ट कैन लर्न, साइकियाट्रिस्ट कैन लर्न कि व्हाट डू आवर लाइव्स शो देम. सो एवरीबडी शुड फील दैट कॉन्फिडेंस, दैट स्ट्रेंथ, दैट करेज, दैट व्हाट यू हैव you are able to impart and create a lot of hope in the world. जब आपने when you transitioned from art to mental health 2018 से, what was the biggest challenge in mental health care in India? तो उस टाइम मुझे लगा कि मैंने खुद काफ़ी मेंटल हेल्थ चैलेंजेस देखे हैं, लेकिन पहले मैं सीखूं कि दुनिया में क्या चल रहा है, हाउ आर पीपल क्रिएटिंग क्वालिटी मेंटल हेल्थ एट स्केल. तो मेरा आइडिया ये था कि सर्विसेज बिल्ड करा जाए लोगों के लिए एंड नैरेटिव्स बिल्ड करा जाए और स्टिग्मा ब्रेक किया जाए. तो ये सबको क्या करना है, ऐसे मैंने 5 point प्लान लिखा just on a drawing, you know, in 2018. And I said, first I will try and learn what is happening. I went all over the world and all over India. I met 250 mental health organizations to learn what are they doing, how are they actually taking quality care, how is the patient experience, how are hospitals being built, how are community organizations working, just so that we could absorb. Then we set up a think tank in the UK, a consulting organization that works with governments, that works with international NGOs. Then after that, the setting up of Amaha together with Dr. Amit Malik. Amaha now has become a large service provider. Then we came together with Children First, which is a child and adolescent service in Delhi and Gurgaon. And together now we work for the full family system. Wow. And then last year set up India Mental Health Alliance. Yeah. So ये सब journey में मेरा सबसे big learning ये था कि nobody knows how to solve these problems and fix them
for sure and in a permanent way for anybody. लेकिन we all know a combination of things that work. तो कोई एक सिल्वर वॉन्ड नहीं है, किसी की लाइफ में कोई सोल्यूशन के लिए नहीं है. लेकिन मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम्स, चाहे एनी ऑफ दीज कंडीशंस यू डिस्क्राइब, दे ऑल रिप्रेजेंट देमसेल्व्स डिफरेंटली इन डिफरेंट पीपल्स लाइव्स. तो कुछ पता नहीं है कि मेरी सर्कमस्टेंसेज में बायोलॉजिकल फैक्टर्स भी हैं, जेनेटिक फैक्टर्स भी हैं, अर्ली चाइल्डहुड इन्फ्लुएंसेस भी हैं, और फिर साइकोलॉजिकल फैक्टर्स हैं कि हाउ आई हैव रिस्पॉन्डेड टू माई लाइफ, और फिर आगे आपके सोशल फैक्टर्स भी हैं कि पीयर प्रेशर कैसा है, पेरेंट प्रेशर कैसा है, आपका सोशल लाइवलीहुड कैसा है, इनकम कैसी है. सो ऑल दीज मेक अप मेंटल हेल्थ. अब आप कहाँ उसको एक बकेट में साइलो करोगे? Our mental health is impacted by everything in our life, and everything is impacted by our mental health. It's all linked. अगर हम दो जनरल, क्योंकि आपने बहुत सारी you've come across a lot of cases during these years, अगर हम बहुत जनरल बात करें, बच्चों की मेंटल हेल्थ नीड्स वर्सेस एडल्ट्स की जो मेंटल हेल्थ नीड्स हैं, उनमें जनरली आपने अगर ऑब्जर्व किया हो, क्या डिफरेंस रहता है? तो मेन चीज़ तो ये है कि वी आर ऑल डेवलपिंग, आवर ब्रेन्स आर डेवलपिंग, आवर माइंड्स, आवर साइकी इज डेवलपिंग, एंड मेंटल हेल्थ इज इम्पैक्टेड राइट फ्रॉम द वूम, इफ नॉट बिफोर. तो एक तो जेनेटिक फैक्टर्स होते हैं. अब मेरे अगर मदर को स्किज़ोफ्रेनिया है, या किसी के फैमिली में एडिक्शन है, या किसी के डिप्रेशन है, तो देयर इज़ अ हायर चांस दैट इट गेट्स पास्ड ऑन विद जनरेशंस. जितना जल्दी इंटरवीन करेंगे उतना बेटर है. सबसे पहले तो ये बात. दूसरा है कि 50% ऑफ मेंटल हेल्थ कंडीशंस कैन बी डायग्नोज्ड बिफोर द एज ऑफ 15. 75% कैन बी डायग्नोज्ड बिफोर द एज ऑफ 18. तो आप सोचिए, अर्ली इंटरवेंशन मेक्स ऑल द डिफरेंस, बिकॉज जो ब्रेन की न्यूरोप्लास्टिसिटी है, द वे द ब्रेन इज़ डेवलपिंग, जितना जल्दी हम कैच करेंगे कि ये डेवलपमेंट माइलस्टोन्स मिस हो रहे हैं, चाहे ऑटिज़म हो, चाहे ADHD, OCD, ये कोई प्रॉब्लम्स हों, चाहे एनी अदर डेवलपमेंटल डिसऑर्डर्स, इट इज़ रियली हेल्पफुल टू कैच इट अर्ली एंड एक्ट ऑन इट अर्ली. लोग क्या करते हैं? पोस्टपोन करते हैं. अगर कोई प्रॉब्लम है तो नहीं, पहले होम्योपैथी ट्राई करेंगे, पहले आयुर्वेदा ट्राई करेंगे, पहले घर के नुस्खे ट्राई करेंगे, फिर देखेंगे क्या करना है. ऑल दीज थिंग्स आर वेरी इंपॉर्टेंट. This is not to say that we should try psychiatric treatment, clinical treatment only. But every treatment must be explored, every support must be explored early. Okay. So early intervention is the main thing. And when it comes to young people, the impact that we can have if we intervene, अगर किसी को दवा की ज़रूरत है, or somebody needs therapy, speech therapy, movement therapy, cognitive behavior therapy, any challenges that we can help with, the improvement is much faster and it lasts much longer. So the younger we intervene, the better mental health we are giving ourselves. True. Because mental illness is a 1 in 4 problem, but mental health belongs to everybody. Everyone, true. सभी को चाहिए. Absolutely. अब आजकल के टाइम पे डिमेंशिया, अल्जाइमर्स, देखो आप 80s में पहुंच जाओ तो सबको, मतलब we are saying 85% of the population will have it. How do we preserve our mental health? उसके लिए early intervention is important. अच्छा, फिर schools and colleges में इम्पैक्ट लाना बहुत ज़रूरी है. टीचर्स को हेल्प करना, हाउ टू आइडेंटिफाई अ प्रॉब्लम. पेरेंट्स की कम्युनिटीज़ बनाना, वेयर पेरेंट्स कैन टॉक ओपनली अबाउट दीज थिंग्स, दे कैन सपोर्ट ईच अदर. एक तरह से ना, आप अगर आपको पता हो, अल्कोहलिक्स एनोनिमस होता है फॉर फैमिलीज़, एंड एल-एनॉन वगैरह होता है फॉर फैमिलीज़ हु आर गोइंग थ्रू एडिक्शन, कि उनकी फैमिली को सपोर्ट हो. उसमें एक अलर्ट टीन प्रोग्राम भी है टू सपोर्ट द चिल्ड्रन ऑफ पीपल हु हैव अल्कोहलिज्म. इस तरह से सपोर्ट ग्रुप्स कई बने हुए हैं. तो अगर मेंटल हेल्थ कंडीशंस के लिए भी लोग सपोर्ट ग्रुप्स बनाएं, ऑटिज़म के लिए हैं सपोर्ट ग्रुप्स, पेरेंट्स हु हैव चिल्ड्रन विद मेंटल हेल्थ चैलेंज के हैं सपोर्ट ग्रुप्स, या ग्रीफ और लॉस के लिए हैं. तो इस तरह से कम्युनिटी हीलिंग इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग. दीज आर द थिंग्स दैट हेल्प द यंगर जनरेशन. एक वोकेबलरी मिल जाए, एक सेफ्टी मिल जाए, चाहे पेरेंट्स के साथ, टीचर्स के साथ बात कर पाएँ. स्कूल्स बिकम मोर ओपन and we are not hiding and pretending. आजकल because of chat GPT, because of internet, हर बच्चे को पता है what these challenges are. हमारे पास 5 साल के बच्चे आ रहे हैं with depression, 10 साल के बच्चे आ रहे हैं with suicidality, right? कई बच्चे आ रहे हैं थेरेपी में ये बोल के कि हमें पता है कि हमारे पास options हैं हमारी life अपने हाथ में लेने के लिए. That is why I am trying to get better. What is the hope we can give our children is to say that it is true that we are living a broken world. It is true that climate, geopolitical problems, कई मुश्किलें हैं.
but the hope actually lies in this generation. Of course. This generation is what is going to help the older generation also, and is going to educate the older generation, True, true. is much more evolved and progressive when it comes to all things mental health. तो मेरा लास्ट पीस तो ये रहेगा कि यंग लोगों को हेल्प करना है तो यंग लोगों की सुनो, Actually, And बिल्कुल सही बात है। वो क्या बोल रहे हैं, उनको क्या सुनना लग रहा बहुत है, जरूरी सुनना है और समझना है। है। Absolutely. यहाँ पे बैठ के ज्ञान नहीं देना है कि हमें पता है, हम बताते हैं आपको कैसे फिक्स करना है। तो प्रॉब्लम शुड नॉट बी लोकेटेड इन दैट पर्सन कि ये जने को मैं फिक्स कर दूँ, बिकॉज इट इज़ अ सोशल प्रॉब्लम। सभी को क्यों है? क्योंकि इट इज़ ऑल आर कलेक्टिव प्रॉब्लम एंड कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी। एक ऐसा मेंटल हेल्थ से जुड़ा मिथ which you would want through us through this interview कि this should be let go. एक ये जो शर्म है, ये जो झिझक है, we all believe that only we are going through this problem. Our problem is so unique, it is so different, it is so completely bizarre sometimes कि ऐसा तो नहीं होता होगा, नॉर्मल लोग तो अलग होते होंगे, है ना? तो मैं नॉर्मल लोगों में से नहीं हूँ, बिकॉज हमारी फैमिली में डिप्रेशन है, एडिक्शन है, साइकोसिस है, स्किज़ोफ्रेनिया है, अलग अलग परेशानियाँ हैं, या फिर सिर्फ मतलब चाहे ग्रीफ हो रहा हो, चाहे ट्रॉमा हो रहा हो किसी तौर का, लेकिन हमको सबको लगता है कि हमारी प्रॉब्लम यूनिक है, वो कोई नहीं समझेगा। तो मैं बस ये बताना चाहूँगी कि आजकल हर घर में हर जने के पास एक स्टोरी है, आप पूछ के तो देखिए और अपनी स्टोरी बता के तो देखिए। तो दिस इज़ द मेन मिथ आई वांट टू लीव, दैट वी ऑल फील अलोन, बिकॉज प्रॉब्लम ये नहीं है कि व्हाट वी आर गोइंग थ्रू, प्रॉब्लम ये है कि हमें लगता है हम अकेले हैं। तो इफ़ वी कैन ऑल रिकग्नाइज, मुझे पता है यहाँ पे हम 5 लोग बैठे हैं, तो ये इंटरव्यू ख़त्म होगा और हम एक दूसरे से शेयर करेंगे कि किसका फ्रेंड, किसकी फैमिली में क्या मुश्किलें उनको हुई हैं। सो लाइक दिस स्टोरीज इंस्पायर अदर स्टोरीज। एक जना शेयर करेगा तो कई लोगों की हेल्प होगी, इसीलिए हमने ये किताब लिखी है, होम कमिंग। मोर एंड मोर पीपल विल गेट हेल्प्ड, एंड आई होप दैट दीज आर स्टोरीज ऑफ विमेन, बट एक्चुअली हम सबकी स्टोरीज हैं अक्रॉस ऑल जेंडर्स। एंड मैं चाहूँगी कि एवरी मैन, एवरी young boy, every woman picks up this book and looks at it and identifies with some part of it, some of the struggle, some of the resilience, some of the hope, and lots of courage to say कि यार we also want to own our lives wholly and be able to share it with the world, and उसमें बहुत freedom है, खुद के लिए भी freedom है और जो सुनने वाला है उसके लिए भी you have done a lot for them। तो ये फेथ के साथ चलना है कि हम अकेले नहीं हैं, और एक्चुअली हर घर में प्रॉब्लम है तो हम एक दूसरे की हेल्प कर सकते हैं, इसको बस इनविजिबल से विजिबल कर देना है, दैट्स इट। वी जस्ट हैव टू पुट वर्ड्स टू साइलेंस। मेंटल हेल्थ की स्पेस में अगर हम बात करें, 3 चीज़ों में आपके हिसाब से सबसे बड़ा बैरियर इस वक्त क्या है? मनी, माइंडसेट या एक्सेस? देखिए, अगर रिसोर्सेज तो आ जाते हैं, या तो स्टेट सपोर्टेड रिसोर्सेज आ जाते हैं या प्राइवेट सेक्टर सपोर्टेड या अपने आप में, लेकिन मेन इशू हमारा है हमारे खुद का माइंडसेट एंड हमारा सोशल माइंडसेट। अगर हम इसको फ्री कर दें, अब जैसे हमने जब अमाहा बनाया तो हमारे इन्वेस्टर्स और लोगों ने पूछा आपको कैसे पता लोगों को ज़रूरत है? आप बोलते हो कि 200 मिलियन पीपल हैव डायग्नोज्ड मेंटल हेल्थ कंडीशंस, तो but how do you know that they will actually come if you open these centers all over the country and all of this? So we said, we know there are enough people who are already ready and willing to get the help. So we are not even talking about those who are still feeling in denial or in stigma or whatever. कई high numbers में लोग, हज़ारों लाखों लोग are out there seeking help and treatment, तो उनकी help करी जाए। So basically the main thing is that the mindset has to be that we have to be focused on the solution, not on the problem. But for that we have to understand the problem. So if we are able to do that as families, as teachers, as parents, as workplace employers, अगर हर बॉस को समझ में आ जाए कि how to create a safe, mentally healthy workplace, जहाँ पे मैं peer pressure नहीं है, जहाँ पे मतलब मैं ये नहीं बोल रहा हूँ somebody is having a grief or a loss and I'm telling them आप कल ड्यूटी पे कितने बजे आ रहे हो, how do I make sure that everybody who is an influencer or a leader in any community understands this and shifts their mindset? अगर लीडर्स खुद बोलना शुरू करेंगे कि भाई मेरे घर में भी मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम्स हैं, तो ऑटोमेटिकली सेफ्टी क्रिएट हो जाएगी।
अगर लीडर्स बोलेंगे मुझे खुद नर्वस ब्रेकडाउन हो रहा है या मुझे एंग्जाइटी हो रही है, स्टार्टअप कम्युनिटी में आप देखें, वी आर ऑल सॉर्ट ऑफ फाउंडर्स. आई एम नाउ ऑन माई 5th enterprise, so to say, across art and mental health. I see so many founders and so many entrepreneurs who are struggling because it is such a lonely journey. चाहे वो 22-year-old entrepreneur हो, चाहे वो 40 या 50-year-old हो. अब हम किससे बात करें, किससे शेयर करें? So that opening up mindset is really important. If that happens, we are able to create the demand, we are able to create the supply. Of course. And That's you very know, good point, the yeah. minute you say that, look, if people change their mindsets and say, give me mental health services will appear, True, right? true. If you look at the last 5 years after COVID, कितने सारे सर्विसेज हमारे 2019 में 22 थेरेपिस्ट थे हमारे टीम में, आज 222 हैं Wow. थेरेपिस्ट और साइकेट्रिस्ट. और हम अकेले नहीं हैं, बहुत सारे मेंटल हेल्थ सर्विसेज आ गए हैं आजकल, चाहे वो डिजिटल टेक्नोलॉजी बेस्ड हों, चाहे वो सेंटर्स हों फिजिकल, बट कई सारे थेरेपिस्ट साइकेट्रिस्ट आर बिकमिंग अवेलेबल. कई सारे ब्रांड्स एंड ऑर्गेनाइजेशंस खुल गए हैं हु वांट टू सर्व पीपल. इस तरह से द पब्लिक हॉस्पिटल सिस्टम, मेंटल हेल्थ केयर एक्ट जो बना है, अब आई डोंट इवन नो इफ पीपल नो कि इंश्योरेंस कवर्स मेंटल हेल्थ एट पार विद फिजिकल हेल्थ. अगर आपको एडमिट होना है, चाहे वो अल्कोहल डिटॉक्सिफिकेशन के लिए हो, चाहे वो स्किज़ोफ्रेनिया या सुसाइड चैलेंज के लिए हो, आपको फुल इंश्योरेंस कवर मिलेगी हॉस्पिटल में. सो दीज आर द प्रोग्रेसिव एक्ट्स एंड लॉज ऑल्सो दैट वी हैव. तो ऐसा नहीं है कि प्रोविजंस नहीं हैं, रिसोर्सेज बन रहे हैं, प्राइवेट फिलैंथ्रोपी इज़ कमिंग फॉरवर्ड. इंडिया मेंटल हेल्थ अलायंस जो हमने बनाया है, इसमें प्राइवेट फिलैंथ्रोपी इज़ पुट इन अ लॉट ऑफ मनी. वी आर सेटिंग अप अ नॉलेज सेंटर, उसमें फ्री एक्सेस और रिसोर्सेज होंगे, जैसे लोग एक्सेस कर सकते हैं. पेरेंट गाइड्स होंगे, टीचर्स गाइड्स होंगे, एक होल स्कूल अप्रोच, हेल्दी वर्क प्लेस, इस सब के टेम्पलेट्स होंगे. Companies can just go. In fact, at Amaha, we work with over 150 corporates. So we provide employee mental health support. तो employees के लिए भी, उनके families के लिए भी. तो इस तरह से कई चीज़ें अवेलेबल हैं, लेकिन हमें लेना है उन सर्विसेज को, हमें मांगनी है वो मदद, और हमें एक्सपेक्ट करना है, डिमांड करना है. अगर डिमांड करेंगे, सप्लाई आ जाएगी, सर्विसेज बन जाएंगे, गवर्नमेंट पॉलिसी बनाएगी. बस लोगों को अपना माइंडसेट चेंज करना है कि मैं अकेला नहीं हूँ, हम सबको ज़रूरत है, और अभी अर्जेंट ज़रूरत है. ये नहीं कि 5 साल बाद या 25 साल बाद हमारी तरह रहना जाए. एकदम जैसे ही फील हो तो हेल्प मांगनी है. पहले फैमिली फ्रेंड से हेल्प मांगे, नहीं तो मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल्स के पास जाएं, नहीं तो स्कूल टीचर्स, अपने वर्क प्लेस में जाएं, नहीं तो सोशल मीडिया पे लिखें और कम्युनिटी ग्रुप्स ढूंढें. लेकिन हेल्प मांगनी बहुत ज़रूरी है. जैसे आपने अभी कहा ना, लोनलीनेस, कनेक्शन, ये दो ऐसी चीज़ें हैं जिसके लिए हम सबसे ज़्यादा वी आर क्रेविंग फॉर, इस मतलब किसी भी जनरेशन में. और क्योंकि अभी भी एक्सेसिबिलिटी थोड़ी सी उतनी ज़्यादा नहीं है जितना हम चाहते हैं. अर्बन में हो सकता है, अर्बन इंडिया में बहुत ज़्यादा और रूरल में नहीं है. तो आई थिंक यहाँ पर एक चीज़ जो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, इट्स व्हेन यू आर शेयरिंग योर स्ट्रगल्स, the other person would always listen with judgment. तो ये चीज़ कैसे दूर करें? बिकॉज हम जैसे भी अपनी स्ट्रगल सुना रहे हैं, सुनाने वाले, सबसे पहले यही दिमाग में हो, सामने वाला ना जज करेगा मुझे. लेकिन अगर आपको ये फेथ हो कि सामने वाले के भी जिंदगी में कुछ हो रहा है, सामने वाले पे भी कुछ बीती है, मैं उसकी हेल्प कर रहा हूँ अपनी स्ट्रगल शेयर करके. मैं यहाँ पे बैठी हूँ, मेरी बेटी है 13 साल की, मेरी मदर हैं जिनको स्किज़ोफ्रेनिया है, जो कि पूरे सपोर्ट में है कि ये हमने पूरी बुक लिख डाली हमारी फैमिली की स्टोरी के बारे में. हम सब एज अ फैमिली, ऑल ऑफ अस आर स्टैंडिंग हियर टुडे, एंड देयर आर मेनी फैमिलीज लाइक दिस हु आर सेइंग दिस इज एवरीथिंग दैट हैपेंड टू अस, विद अस एंड बाय अस, एंड दिस इज हाउ वी डेल्ट विद आवर लाइफ. दीज आर आवर स्कार्स, दीज आर आवर ट्रॉमास, दीज आर आवर डिफिकल्टीज. आप बताओ आपकी लाइफ में क्या चल रहा है. तो इस तरह से वी ऑल फील दैट वी आर अलोन and we will be judged by the other person. But आप statistics ही देख लो, 300 million people with diagnosed mental health conditions. Every 4th Indian has a mental health problem. Suicide is the #1 cause of death for the age of 15 to 25 in our country. We are the youngest working population in the country. Globally, there's a suicide every 40 seconds. In India, it's every 17 seconds. ये सब statistics अगर आप देखो और समझो
कि आप बोलो कि 22 मिलियन पीपल विद साइकोटिक डिसऑर्डर्स हैं इंडिया में, 70 मिलियन पीपल विद डिप्रेसिव डिसऑर्डर्स हैं, हर चौथे पांचवें लोग के पास कुछ ना कुछ परेशानी है, 50 मिलियन चिल्ड्रन विद मेंटल हेल्थ डिसऑर्डर्स डायग्नोज्ड। तो अब आप सोचो कि इस देश में कौन से घर में ये प्रॉब्लम नहीं है। और अगर हम कुछ लोग हैं जो बात करना शुरू करें, हम 11 औरतें साथ में ये स्टोरीज हमने शेयर करी हैं। इंडिया में ऐसी बहुत कम स्टोरीज हैं जो फर्स्ट पर्सन नरेशन में हैं। वी आर ऑल अवेलेबल फॉर इंटरव्यूज, वी आर टॉकिंग अबाउट आवर लाइव्स ओपनली विदाउट एनी शेम, स्टिग्मा, विदाउट वरिंग अबाउट जजमेंट। तो एक तरह से वी आर क्रिएटिंग दैट ओपननेस, एंड जितने लोग अपनी स्टोरी शेयर करेंगे, दे आर हेल्पिंग ईच अदर एंड दे आर हेल्पिंग सोसाइटी ऑल्सो, बिकॉज सबको एक परमिशन मिल गई, ये वैलिडेट हो गया कि इट इज ओके टू टॉक अबाउट दीज थिंग्स, तो ये बोलना ऑर्डिनरी बहुत नॉर्मल जरूरी है। बातें। तो ये बोलना बहुत ज़रूरी है, और फिर ये सोच के बोलना कि दुनिया में कितना गम है, मेरा गम कितना कम है। सो आप आराम से बोल सकते हैं। नाउ यू कैन स्पीक अप, एंड आई थिंक यू शुड फर्स्ट डेफिनेटली रीड Homecoming. It's a beautiful, lovely book, and definitely recommended to all age groups. Thank you very much, Neha. It was lovely having you here. बहुत मजा आया. Now, I think this book is a 100% recommendation to every book lovers shelf. अगर आप book lover नहीं भी हैं, तो भी आपको definitely you should have it in your home. Thank you very much. Lovely meeting you. Thank you so much. Not just for book lovers, it's for anybody who has Yes, lived life. yes. We are all living life for the first time. ये तो सबके लिए. ये हमारा सबका पहला ही experience है. Let's make it worthwhile. True. Thank you. Thank you.